ऑफ लिविंग हैप्पीनेस सेंटर गुडलैंड से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ दिनेश काशीकर जी हैं, जो प्यार से उन्हें काशी जी कहते हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बेंगलोर आश्रम से आए हुए हैं। वे 30 साल से अधिक आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़े हुए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की स्थापना हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर द्वारा की गई है। आज 180 देशों में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था में न केवल हम नैतिक मूल्य के ज्ञान देते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। तो आज हमारे समक्ष दिनेश काशीकर जी हैं, जो वे अपने अमूल्य ज्ञान से हमें इतनी रसास्वादन ज्ञान देंगे जिससे हम लाभान्वित हो जाएंगे। इसके साथ साथ वे न केवल युवा वर्ग के बल्कि वृद्ध व बच्चों के भी वे ज्ञान देते हैं। तो आज इस सत्संग में न केवल ज्ञान देंगे परंतु ध्यान भी हम करेंगे। तो चलिए हम इस ज्ञान रूपी नौका में सवार करते हैं और इस आनंदमय वातावरण में लीन हो जाते हैं। से यदि आंखें बंद हो तो खोल सकते हैं। If our eyes are closed, we may open our eyes. Good evening. Shubh Sandhya. My name is Kashi. It's actually Dinesh Kashikar, but everyone calls me Kashi. It's short and sweet. And welcome to an evening of mobile phone ringtones, knowledge, singing, meditation. गान, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों मिलकर सत्संग बनते हैं। I'll do English and Hindi both. Those who understand English and Hindi, please follow one set of instructions. If I say breathe in, saans andar, you don't have to breathe in twice. And there will be distractions, people will walk around. But that's when we can really go deeper within ourselves. The strength of a pole is in how well it is embedded in the ground. खंबे को जितना अच्छे से गाढ़ो, हिलाकर देखते हैं तो पता चलता है गढ़ा है या नहीं. So in today's evening, we'll sing a little. A concert is when a few people sing and everyone listens. But satsang is when you can't hear the singer. जो गा रहे हैं उनकी आवाज विलीन हो जाए और सब गाने लगे, तब सत का संग हुआ. सत का संग होना हो तो संग की आवश्यकता है और सत्य की आवश्यकता है. सत्य मीन्स ट्रूथ एंड संगा मीन्स कंपनी ऑफ ट्रूथ. And that which is here right now, that is the truth. सत्य क्या है? जो अभी यहाँ है वो सत्य है. जो बीत गया
वो तो बीत गया। शास्त्रों में कहा है त्रिकाला बाधितम तत्सत्यम, जो तीनों कालों से बाधित नहीं है वो सत्य है। In the Shastras it is said, what is the truth? That which is not obstructed by the past, present and future, that is the truth. Some things might be true yesterday, but they are not true right now. And that's not the absolute truth. And when we can be with what is truth, then that is satsang. Singing is one way to experience satsang. भजन जब गाते हैं तब सत्संग का अनुभव करते हैं। जब भजन सुनते हैं कुछ अलग प्रक्रिया चलती है, पर जब भजन गाते हैं तो हम वर्तमान में आते हैं। जब भजन सुनते हैं तो मन इधर उधर जा सकता है, अरे वो ताल उधर छूटा, ओ दिस भजन आई हर्ड yesterday also, oh when Rishi Nitya Pragya was here he sang this bhajan, or when Vaishampayan ji was here he sang this bhajan. The mind can go into the past when you are listening to bhajans, but when you are singing a bhajan then you are here right now, then nothing else matters. और इसीलिए भजन गाने से मन वर्तमान में आता है, मन वर्तमान में आता है तब सत्संग होता है। And that's why in today's session I would like everyone to sing. गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। Whether you know how to sing or don't know how to sing, what do? You make some noise. Any sound is okay. But when we are doing something, जब कर्म करते हैं तब उससे कुछ उपजता है। And we'll sing very simple bhajans today. Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate. Things that people have been chanting for many, many years. जो कई सदियों से लोग के चेतना में गूंजता आ रहा है, आज वही गूंज उठेगा फिर से। So, when we are singing these bhajans, it gives us a unity across time. This consciousness is very ancient. चेतना बड़ी प्राचीन है और कहीं न कहीं यही गूंज बार बार इस चेतना में उठी है सदियों से, तो समय के परे हमें ले जाता है। It takes us beyond time, because so many times when we are in satsang or when we are listening to chanting, it feels as if the consciousness recognizes it. It's just that the tongue is not able to say it. So these chants are ancient. They bring us a unity across time. And when we are all singing the same thing, it's the same vibration in all our minds. हम सबके मन में एक गूंज उठता है, तो देश और काल में एक सामंजस्य बनता है। In space and time, it creates a unity, a harmony. And that is why it is called Bhakti Yoga. Yoga means yuj, which means to unite. Yoga comes from the root yuj, which means unite. योग शब्द युज धातु से बनती है, जिसका अर्थ है, तात्पर्य है जोड़ना। इसलिए कई बार आप सुने होंगे योग को जोग भी कहते हैं। तो जब एक धुन हमें देश और काल में जोड़ दें, तब वो भक्ति योग बनता है। और इसीलिए भक्ति योग का अनुभव करना हो तो सब लोग मिलकर गाते हैं। सो the whole idea of satsang is that there is a rhythm in creation. If you look at it, there is an amazing rhythm in creation. The sun and the moon, the stars, they go in a very perfect rhythm. प्राचीन काल से ज्योतिषाचार्य पंचांग बना रहे हैं और उसमें बड़ा ठीक से बताते कब सूर्योदय होगा, कब चंद्रमा कब कहाँ रहेगी। The ancient practice of Jyotish, the calculations that the rishis did thousands of years back, still predict the movement of the stars and the planets. So in a certain sense, the whole universe follows a very beautiful rhythm. Our mind also follows a rhythm.
मन की भी एक लय है। सुबह उठते हैं, कब उठते हैं वो अलग, हर किसी का अलग लय है। Everyone has a different rhythm of waking up. That's a different story. Parents wake up earlier, children take more time. So everyone operates at a certain rhythm. When we are able to harmonize that rhythm with the rhythm of the universe, then that is satsang.
गणपतये नमः गं गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः गणपतये वो सत्संग ही क्या जहाँ थोड़ा पसीना न बहे। You know, we've all heard the story of how Ganesha was born. गणेश जी की उत्पत्ति कैसी हुई, हम सब ने सुना है कहानी। I'll say it in Hindi first and then I'll repeat the whole thing in English. तो ऐसा कहा जाता है, माता पार्वती अपने तन का मैल निकालकर पुतला बनाती हैं। शिव पुराण में प्रसंग आता है और उस पुतले में जान भरती है और कहती है मैं स्नान करने जा रही हूँ, यहाँ खड़े रहकर देखो कोई अंदर ना आ पाए। अब गणेश जी वहाँ खड़े हैं और आते हैं शिव जी। शिव जी कहते हैं मेरा घर है, अंदर आने दो। और छोटा सा बच्चा कहता है मैं नहीं आने दूंगा। माँ ने उसे शक्ति दी है, माँ की शक्ति पर भरोसा है। वो कहता है दुनिया में कोई भी आ जाए, मैं तो अपनी माँ के बल पर लड़ जाऊंगा। मेरी माँ ने आदेश दिया है, वो दूसरा कोई कैसे ठुकरा सकता है। तो वो गणेश जी अड़ गए, शिव जी भी अड़ गए, लड़ाई हुई, सर कटा। और जैसे बॉलीवुड मूवी में पुलिस हमेशा बाद में ही पहुंचती है, वैसे पार्वती जी भी उसी समय आई जब सर कट गया था। और पार्वती जी कहती हैं आपने अनर्थ कर दिया, मुझे मेरा गणेश जी लौटा दो वरना मैं आपको अनर्थ कर दूंगी। तो प्रसंग इस तरह से है, कायदे से देखो तो बड़ा अचरज लगता है, ये कैसी कहानी है। क्या माता पार्वती के तन पर इतना मैल आ गया कि पूरा पुतला बन गया? शिव जी अंतर्यामी पूरे जगत का ज्ञान रखते हैं, क्या उन्हें ये बात नहीं हुआ कि तू मेरा ही पुत्र है? एक तरह से देखा जाए, तर्क लगाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इस कहानी में कुछ तार्किक है ही नहीं। और बच्चे का छोटा सा सर, उसको हटाकर वो सर वहीं पड़ा है, वही लगा देते, पर नहीं, हाथी का सर लगाया। ये तो प्रोपोर्शन का कोई बना नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पौराणिक कथा बड़ी अजीबो गरीब लगती है, पर उसी को ज्ञान के नज़रिए से देखो तो पर्व का मतलब होता है जब हम उत्साह से झूमते हैं, नाचते हैं, पर्व मनाते हैं। जैसे दिवाली का पर्व हुआ, होली का पर्व हुआ।
और जो पर्व से निकला वो पर्वत, और पर्वत की पुत्री पार्वती। माने जो उत्साह, जो जोश, आनंद, सेलिब्रेशन से जो निकले वो पार्वती है। और जब पार्वती से शिव अलग हो जाते हैं तो वही सेलिब्रेशन तामसिक हो जाता है। जब उत्साह तो होता है पर उसमें दैव गुण नहीं है तो वही उत्साह तामसिक हो जाता है, उपद्रव करता है। और जब शिव लौटकर आते हैं वो इस नकारात्मकता को देख नहीं पाते, अपना नहीं पाते, क्योंकि नकारात्मकता और शिव दोनों अलग अलग छोर हैं। जहाँ शिव है वहाँ कोई नकारात्मकता नहीं, नेगेटिविटी नहीं, और जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ शिव नहीं। तो शिव कहते हैं इससे मेरा कोई संबंध नहीं, और उसका सर अलग कर देते हैं। सारी नकारात्मकता की जड़ हमारी बुद्धि है, जो हम जानते हैं उसी से हमारा दिमाग खराब होता है। अब इसी दृष्टिकोण को यदि विशाल दृष्टिकोण में बदल दें तो आप देखो वही चीज़ जो गलत लगती है वही सही लगने लगती है। तो हमारी ये प्राचीन परंपरा रही कि ये पौराणिक जितने भी कथा होते थे वो कथाकार आकर कथा बताते बताते इसका अर्थ भी बताया करते थे। कहानी के साथ भजन भी होता था, बीच बीच में थोड़ा सा ज्ञान की बातें हुआ करती थी। धीरे धीरे ये कथा की जो प्रणाली है वो कहीं न कहीं बदलती चली गई, और लोग सिर्फ किताब में पढ़कर कहने लगे अरे इसमें तो कुछ रखा नहीं है। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा है वो कहीं लुप्त होने लगी। और सौभाग्य ये है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कृष्ण कह गए जब भी अधर्म का राज होने लगेगा तो किसी न किसी रूप में कृष्ण आ ही जाते हैं। तो कितने संत महापुरुष कितने आए, और जहाँ जहाँ ज्ञान का अभाव हुआ वो फिर से ज्ञान को ले आए। So I was telling the story of how Ganesha was born. It is said Parvati took all the dirt from her skin, made an idol, and this idol was given life, and Parvati said, stay here, make sure no one comes in, I'll go take a bath. And there comes Shiva. Shiva says, I don't recognize you. And they have a fight. Shiva cuts the head off. Parvati comes there. She says, hello, what have you done? Undo it. And Shiva says, I can't put the same head back. I'll put the head of an elephant. Now, if you look at the story, it's so crazy. Say, did Parvati have so much dirt she could make a whole idol out of it? And Shiva, who knows everything, can't he see that it's his own son? If you look at the story, it seems so crazy. And the head is lying there. You could put the same head back, but no, you had to put the head of an elephant. No sense of proportion. Or maybe he was a modern artist. So, if you look at it logically, the story doesn't make sense. And lot of times people say this about our Puranas. They say that, well, it's all crazy stuff. But if you look at the sense, the meaning behind these stories, it's very beautiful. Parva means celebration. And Parvati is that which comes out of celebration, the daughter of Parvata. And when celebration is separate from Shiva, the consciousness, when celebration is not spiritual, it doesn't have an element of devotion in it, then that same celebration gathers dirt. It becomes dirty. You enjoy in the night, you imbibe alcohol, and next day in the morning there's a hangover. So the result of a celebration which is with spirits and not spiritual, you find you get a hangover. So Parvati says this dirt is just skin deep, it's just on the surface, it can be removed.
no big deal. And when she does that and Shiva comes, the consciousness cannot recognize negativity. Consciousness does not see negativity. For the divine, this whole creation is divine. ऐसा कौन सा पत्ता है जहां शिव नहीं है? कण कण में शिव है। जो सर्वव्यापी है वो इस कण में है, उस कण में है। That which is omnipresent is present everywhere. By definition, the divine exists in every atom of this creation. How then would you say this is negative? So for the divinity there is nothing negative, cannot see the negativity. What does Shiva do? Cuts the head off and puts the head of an elephant. When we have a broader vision, then nothing seems negative. We are able to see the positive in everything. Have you seen some people have such a positive outlook to life, and some people, whatever happens, the best happens, you'll find some fault there. And some people are chronically happy. ऐसा लगता है कोई उनको दबा नहीं सकता, हंसी मजाक में पूरा जीवन निकल जाता है। कई बार जब परिस्थिति और भीषण हो, मुस्कान और बड़ी हो जाती है। So when we have a broader vision, the same negativity becomes positivity, and that is what is able to remove obstacles. वही तो बाधा निवारण करती है। जब हमारी मनोभावना संकीर्ण हो जाती है, छोटी हो जाती है, तभी तो बाधाएं आती है। माँ का सर फटा जा रहा है, हेडेक है, कुछ करने का मन नहीं करता, पर जैसे ही बच्चा स्कूल से लौटता है, बच्चा रो रहा है, पाँव में घाव लगा हुआ है, फुटबॉल खेलकर गिरा, माँ के हेडेक को क्या होता है? वहीं ख़त्म हो जाता है। जब मैं करते बैठते हैं, बकरी बन जाते हैं, पर जब मैं से मन हटा, वह सामने आया, जब दृष्टिकोण विशाल हो गई, तब अपने आप नकारात्मकता खत्म हो जाती। तो गणेश जी की उत्पत्ति की कहानी का ये जो अद्भुत ज्ञान गुरुदेव ने इतनी सुंदर तरीके से दिया, हर कहानी के पीछे इस तरह से कुछ न कुछ है, और जब इसको खोल कर देखते हैं तो कुछ बड़ा ही निराला हमें अनुभव में आता है। When we go through the meaning behind these stories, then they come alive to us. And this used to be the tradition. There would always be a kathakar, someone who would say the story and then give the meaning along with it. जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। हो जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। लंका में हो रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। हो रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना,
राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ सीता हरण की कहानी सुनो, वाल्मीकि जी की जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, वाल्मीकि जी की जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, वाल्मीकि जी की जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, वाल्मीकि जी की जुबानी सुनो। ओ सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हो लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। हो लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। हो लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। ओहो लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे ना के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। ओ बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। हो मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। हो मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना,
राम जी चले ना हनुमान के बिना, हो रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, रावण मरे श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, हो सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना, सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना, हो लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना, हो मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, हो भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की जय। गुरुदेव। So it is said so beautifully, मुक्ति मिले ना राम के बिना, भक्ति मिले ना, you get freedom because of Rama, but for bhakti you need Hanuman. Hanuman was the embodiment of bhakti. भक्ति का प्रतीक रहे हनुमान। तो हनुमान जी कहते हैं कि जब मैं दास भाव में रहता हूँ आप मेरे प्रभु, जब सखा भाव में रहता हूँ आप मेरे सखा, और जब आत्म भाव में तो आप मुझसे अलग नहीं। हृदय खोल के दिखाते भीतर राम ही है। तो दुनिया में जब हम चलते हैं तब प्रभु की लीला मानकर चले। अपने आप में बैठे हैं, अपने लिए कुछ मांगना है तो सखा है, साथ में चल रहे हैं। पर ध्यान करने बैठे तो ये समझें कि तो मेरे भीतर ही प्रभु है। कबीर कहते हैं कि ढूंढने में निकला कहीं नहीं मिले, अब ठहर गया, अब प्रभु मेरे पीछे भागते हैं। So it's so beautiful, these essence of life that all these songs embody. It's so beautiful. एक दिन किसी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव भगवान तो सब जगह हैं, हम ये गुडलैंड सेंटर में आए क्यों? गुडलैंड सेंटर नहीं, that time they asked, why should we come to an ashram? Why should we go to a mandir? Why should we, when the divine is everywhere? भगवान तो सर्वव्यापी है। मोबाइल फोन की वेव्स तो सब जगह है, कहीं पर भी बच जाती है। तो फिर सत्संग में आकर ही क्यों बचता है? घर पर रहते वहां पर भी बचता, क्यों हम सत्संग में आए? Why should we come to a satsang? My mobile phone can ring at home also. So Gurudev said so beautifully, that person who asked the question was standing right below the fan. So Gurudev asked him, can you feel the air? He said, yes, I am standing under the fan. मैं तो पंखे के नीचे हूँ, हवा तो मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या हवा सब जगह है? हाँ जी, पूरे दुनिया में कहीं पर भी चला जाओ हवा तो है ही। हवा सब जगह होने पर भी फैन के नीचे खड़े रहते हो तो महसूस कर पाते हो। It's only when you're under the fan that you can feel the air, though it's everywhere. The same way, coming to satsang, though the divinity is everywhere, when you come to satsang, it becomes your experience. And that's why all these satsangs happen so regularly. हमारे सत्संग में आने से जैसे पंखे के नीचे खड़े रहते हैं तो हवा महसूस होता है, इसी तरह से यहाँ आते हैं, मंदिर जाते हैं, सेंटर में आते हैं तो
दिव्यता अनुभव में आती है तो सब जगह। काशी भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गायत्री मंत्र? वेरी गुड क्वेश्चन। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. We've all heard this mantra. Maybe you have sung it many times. तत्सवितुः वरेण्यम. सवित्र, वित मीन्स, वित धातु का अर्थ होता है ज्ञान. द वर्ड वित मीन्स नॉलेज. सवित्र मीन्स दैट विच इज विद द नॉलेज, जो ज्ञान के साथ है, जिसके साथ ज्ञान चलता है. चेतना है जिसके साथ ज्ञान चलती है. वेयर डज द नॉलेज कम फ्रॉम? इट कम्स बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस. When you're not conscious, maybe you're sitting here, your mind is elsewhere, you don't hear what I'm saying. It's your consciousness that allows you to get the knowledge. tat savituh varenyam. उस सवित्र की मैं वंदना करता हूँ. वरेण्यम, I honor that consciousness. Which consciousness? There's consciousness everywhere. tat savituh varenyam bhargo devasya धीमहि. भर्गः देवस्य, देवताओं की जो प्रकाश है, जिसकी वजह से देवताओं में प्रकाश है. देवस्य भर्गः, देवताओं का प्रकाश. ये संसार पूरा देवताओं से चलता है. अलग अलग ऊर्जा से ये संसार चलती है. मोबाइल फोन की तरंग यहाँ है तब मोबाइल फोन चलता है, उसके बिना वो बज नहीं सकता. If there are no network here, then your mobile doesn't ring. Because there is a network, so don't think the mobile rang, it was not a bug, it was a feature. वो तो होना ही था, और वो तब बजा जब हम उसकी बात कर रहे थे. तो अक्सर हमें लगता है कि मोबाइल फ़ोन बजा वो गलत हुआ, पर एक और दृष्टिकोण से देखो वो सही हुआ. तो ये पूरे संसार किसी ऊर्जा से चलती है. धीमहि, धी माने बुद्धि. मैं इस तथ्य को अपनी बुद्धि में लाता हूँ. let that intelligence that runs the whole creation, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. नः माने हम सब, प्रचोदयात्, प्रचोदन माने उसके भीतर जाना. जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, जो विशाल बुद्धि इस सृष्टि को चलाती है, दैट इंटेलिजेंस दैट रन्स दिस होल क्रिएशन, मे दैट इन्फ्यूज ऑल आवर इंटेलेक्ट. दिस इज व्हाट द गायत्री मंत्र सेज. आई ऑनर दैट इंटेलिजेंस दैट रन्स द होल क्रिएशन. मे माई लिटिल इंटेलेक्ट अलाइन विद दैट यूनिवर्सल इंटेलेक्ट. जब आप कोई निर्णय लेते हो और संसार कोई और निर्णय लेता है, तो आप कहते हो हमने गलत निर्णय लिया. When you decide something and the universe decides something else, you decide I'm not going to take my umbrella today, and the universe says let me rain, and then you say, oh, I should have taken my umbrella, it was a wrong decision. But when our intellect aligns with the universal intellect, then you say, I took a right decision. That is why the Gayatri mantra was given at the beginning of education. 16 संस्कार हुआ करते, आज भी होते ही हैं. उनमें से एक संस्कार उपनयन संस्कार. और उपनयन संस्कार तब होता था, जो कुछ आपको माता पिता से सीखना था आपने सीख लिया, अब गुरु के पास जा रहे हो, अध्ययन के लिए जा रहे हो, अब आपको गायत्री का सहारा लगता है. You have learned whatever you could from your parents. Now it's time for you to learn from the world. When you leave the protective covering of your parents, that's when you need your intellect to be aligned with the universal intellect. And that is why the Gayatri mantra was given, so that
we could start taking decisions for ourselves. When we were with our parents would take decisions for us. माता पिता बच्चों के लिए निर्णय लेते थे, हमें निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं थी. तब अपनी बुद्धि चाहे कुछ भी कहे. बच्चा कहता है मैं तो अपने हाथ को आग में डालूंगा, माँ कहती है अरे नहीं वो जल जाएगा. तो माँ की बुद्धि आपकी बुद्धि को सुरक्षित रखती है. आपने गलत निर्णय भी लिया तो माँ बचा लेती. When you would take a wrong decision, someone from your family would say, no, don't do this. But when we were by ourselves, we need to have our intellect aligned with the universal intellect. That's why the Gayatri was given at the beginning of education. Maybe some of us don't have the Gayatri, or maybe you know the Gayatri mantra, but it was not initiated to you. हर मंत्र सिम कार्ड की तरह होता है. Until it is activated, it doesn't latch on to the network. Do you get what I'm saying? The same way, a mantra is a mantra. But when it's initiated, जब दीक्षा होती है, तब मंत्र आपके लिए काम करता है. Until your SIM card is activated, it doesn't latch on to the network. It's just a piece of plastic and metal. But you need to connect it to the network, and that's what the Upanayana does. It allows us to bring the Gayatri into our life. And that's why having Gayatri is such a big blessing, because the more you are able to practice your Gayatri mantra in the right way, when it's initiated to you, then it allows you to align your intellect with the universal intellect. Hari Sundarananda Mukunda, Hari Narayan Hari Om. Hari Sundarananda Mukunda, Hari Narayan Hari Om. Hari Keshava Hari Govinda, 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 Hari Narayan Hari Om. Hari Sundarananda Mukunda, Hari Narayan Hari Om. Hari Sundarananda Mukunda, Hari Narayan Hari Om. Vanamali Murlidhari, Govardhan Girvardhari. Vanamali Muralidhari, Govardhan Girivardhari. Vanamali Murlidhari, Govardhan Girvardhari. Vanamali Muralidhari, Govardhan Girivardhari. नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी. 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 वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी. वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी. नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी. नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी. आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे. 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 आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे. 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 हरि सुंदर नंद
मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी 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 आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे 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 आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे 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 वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी 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 आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो 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 रे रास रचाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम हरि 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 नारायण